परीक्षा की डेट आगे बढ़ाए जाने और इंटरनल असेसमेंट को वापस लिए जाने को लेकर आज एसएफआई ने एक प्रोटेस्ट किया। हमारे साथ एसएफआई की दिल्ली स्टेट कमेटी के 2 मेंबर हैं, अमन और महीना, और ये अभी एक मेमोरेंडम देकर आए हैं ड्यू प्रशासन को। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या हुआ। स्वागत है आप लोग हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी आपका एक बार और बुलाने के लिए। तो अभी जैसे प्रोटेस्ट के बाद आप लोग गए थे मेमोरेंडम देने के लिए, तो क्या बात हुई आप लोगों की प्रशासन से? प्रशासन से जो बात हुई बेसिकली वो ये थी कि वो लोग पार्शली एग्री करते हैं हमारे डिमांड से। जो जॉइंट प्रोक्टर्स है हमने मिला, उन्होंने बताया कि कुछ बातें तुम्हारी बिल्कुल सही है, उनसे हम एग्री करते हैं, पर ऑफिशियली वो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उन्होंने हमें ये बताया कि वो जो कर सकते हैं बेसिकली वो हमारे मेमोरेंडम को कंसर्निंग ऑफिसर्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये हमारी उधर बात हुई। अच्छा मैम, बहुत सारी जो गर्ल्स स्टूडेंट से भी हमने बात की तो उनका भी कहना है कि आईए में बहुत सारी दिक्कत है। क्या आपको लगता है क्या दिक्कत है उसमें? See, first of all, these first years who have come to DU, they had to prepare for CUET, attend coaching, everything, and locate. Come here, find a location to stay here, and then attend classes. And they got only 3 months to study in one semester. And that also, in between the semester, they changed the IA pattern. Now, 45% of marking comes from IA, internal assessment, and the rest is for the objective examination, written examination. See, the problem with internal assessment being increase in weightage is that a lot of students will be forced to become pets of teachers, agree with whatever the teachers are telling. They will be robbed of their own voice in classrooms. And another issue with IA is that there is no re-evaluation scheme, nothing like that. It's a one-time thing. You give it one time, if you can't give, it's gone. And your politics, your opinions, how you are in class, whether you are able to a person who has privilege to talk out in class, to be friendly with teacher, those people will get good marks for IAs, and they will obviously get a higher placement everywhere. But other students who are coming from backgrounds where they didn't get the privilege or exposure for these things will obviously lag behind. So this is also a very also demanding that postponement of examination. Yes. Again, within 10 days this IA scheme that was brought in had to be done, and immediately after that they are bringing in exams with no break in between. We have to consider that only 3 months was given for these students to complete one full semester, to complete the syllabus of one full semester. And this syllabus and all the schemes that was brought with it was very new under FYUP, and students are just getting acclimated to this new pattern, and immediately their exams are here, their IAs are going on, and they're not even getting a breathing space in between. And this kind of education does not have any quality in it. Students are not even studying anything that is enriching for them. They're just going on, and they're not even gaining enough knowledge. So that is the main issue. पोस्टपोनमेंट होता है तो कितने दिन के लिए होना चाहिए? That will be discussed and deliberated with the authorities how much ever is possible, because the academic calendar should not be affected. That is one thing. Because of COVID, the academic calendar was affected too much. Yeah. So we will discuss on that. अमन, एक चीज़ बताइए कि इसमें कहीं कोई छात्र राजनीति का पुट तो नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि केवल 2 हफ्ते रह गए हैं और अब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी, तो 2 हफ्ते पहले हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसका साफ बात ये समझ लेना चाहिए कि क्या 3 महीने का सिलेबस ख़त्म हुआ? क्या सैक और वैक की क्लासेस सारे स्टूडेंट्स की लग रही थी पिछले 3 महीनों में? तो इसका जवाब आता है नहीं। पिछले 3 महीनों में हमने देखा कि सैक और वैक की क्लासेस नहीं लगी है। कुछ कॉलेजेस में, रामजस में, हंसराज में और बाकी कॉलेजेस में टीचर्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो 3 महीने में भी नए टीचर्स आए हैं, कुछ दिन टीचर्स आए ही नहीं है। और उसके बाद पहले एक सेमेस्टर में 4 पेपर पढ़ना होता था। इस बार एक सेमेस्टर में 7, मतलब सैक और वैक का जो है एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ना है। और उसके बाद जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो लोगों को समझना चाहिए कि इस समय स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं, दिल्ली में एक एकोमोडेट करते हैं, नया जगह ढूंढते हैं रहने के लिए, और बस 3 महीने में आप सेमेस्टर ले रहे हैं जब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या हमारा ये डिमांड नहीं होना चाहिए कि पहले सिलेबस कायदे से कंप्लीट करो, उसके बाद एग्ज़ाम लो? हाँ, क्या ये जायज़ डिमांड नहीं है? पहला सवाल ये। और जो दूसरा सवाल है कि आईए का जो बात है, हाँ, आप आईए में कहते हैं, एक बात बताइए,
बताइए कि आइए, अगर आपका एग्ज़ाम आप कह रहे हैं ना बस 2 हफ्ते बचा है पेपर का, क्या 2 हफ्ते पहले आप कह सकते हैं कि जो इंटरनल्स का इवैल्यूएशन का परसेंटेज है वो बदल जाएगा? पहले 25:75 का रेशियो था, अब इसको 45 कर दिया गया। कब किया गया? जब सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा था तब किया है? नहीं, इन्होंने अभी 2 हफ्ते पहले ही मतलब स्टार्ट करा है, नया नोटिफिकेशन लाया है। तो लास्ट मिनट चेंजेस डीयू को नहीं करना चाहिए, ये हम बार बार कह रहे हैं। और जो आईए की बात महीना ने बोली, मतलब सारी बातें बिल्कुल सही है, पर उसमें मैं 1-2 बात और ऐड कर देना चाहता हूँ। ये बात हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कुछ स्टूडेंट्स, कुछ टीचर्स अच्छे मार्क्स देते हैं, कुछ टीचर बुरे मार्क्स देते हैं। हाँ, और उसके बाद मतलब जो ये है कि जो स्टैंडर्डाइज्ड होता था कि आप पेपर लिखते थे और वो बाहर जाके चेक होता था, एक स्टैंडर्डाइज्ड मार्क्स मिलता था। अब क्या होगा कि कुछ टीचर जो अच्छे नंबर देते हैं, लिबरल है ज़्यादा नंबर देने में, उनके स्टूडेंट्स को अच्छा मिल जाएगा, बाकियों को उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरा है कि आईए का जो पूरा आइडिया है वो ये है कि डिस्कशंस होने चाहिए क्लासेस में और ज़्यादा असाइनमेंट्स देने चाहिए, इस पे मार्क्स का इवैल्यूएशन होगा। वो बहुत अच्छा चीज़ है अगर हम मान भी लेते हैं। उसके लिए स्टूडेंट और टीचर्स का रेशियो क्या होना चाहिए? उसके लिए होना चाहिए 1:30। हाँ, क्या डीयू में 1:30 का रेशियो है? डीयू में एक क्लास में, जी की क्लासेस में 100 स्टूडेंट्स बैठता है, तो 100 स्टूडेंट्स के बीच में आईए के बेसिस पे कैसे इवैल्यूएशंस हो सकते हैं? ये भी क्वेश्चंस हैं। तो एक जो जब ये सेमेस्टर शुरू हुआ था तभी घोषणा हो गई थी कि सबसे छोटा सेमेस्टर होगा ये, तो adjust तो करना ही पड़ेगा जी। एक बात बताइए, जो जब सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था तभी इन्होंने बोल दिया था सबसे छोटा होगा, क्या ये इस बात को जस्टिफाई कर देता है? अगर इनको पता था कि सीयूईटी में जो इन्होंने लापरवाही की और लेट एडमिशन हुआ है इससे सेमेस्टर छोटा होगा, तो क्या डीयू प्रशासन को पहले दिन से ही सैक और वैक के सारे टीचर्स तैनात नहीं कर देने चाहिए थे पढ़ाने के लिए? हाँ, क्या तो फिर अगर उनको पता था डीयू प्रशासन को कि सेमेस्टर छोटा था, तो इसी सेमेस्टर सैक और वैक का लैबोरेटरी टेस्ट स्टूडेंट्स पे इनको क्यों करना था? ये बाद में कर लेते। हाँ, सीयूईटी की वजह से इस बार इन्होंने लेट एडमिशन्स लिया है, ये सब ये एफवाईयूपी जो लागू कर रही है अगले साल से कर लेते। तो इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स पे नहीं करना चाहिए कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए और उसको मतलब दूसरी दिक्कतें होने लगे। क्या आपको लगता है कि जो आपने मेमोरेंडम किया है प्रशासन उस पर विचार करेगा? आप दोनों से सवाल है, आपसे भी सवाल है कि अभी जो मेमोरेंडम आप लोग लेकर आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये प्रशासन इस पर कुछ विचार करेगा? See, when we went to submit the memorandum, it is the joint proctor who met with us, and the proctor did give receiving. What he told us is that he does agree with our cause somewhat, not fully, but it is not in his hand to decide whether he should agree fully or not, and whether he should do something to rectify our issues. So he told he will forward our issue and our memorandum to the concerned authorities, and they will see what can be done. But right now there is a time constraint also because exams are approaching. So we are hoping that they will reach a decision soon and let us know. We are hoping for that. We will see. हाँ, बस बात होप का नहीं है, बात ये भी है कि हमने 13 तारीख को किया और हमने पहले भी देखा, जैसे डीयू रीओपन का बात हो, प्रशासन बहुत दिनों तक नहीं सुना, पर एक ऐसा समय आया जब स्टूडेंट्स आर्ट्स फैकल्टी पे आते तो प्रशासन को सुनना पड़ता है और डीयू को खोलना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन के साथ हम कुछ जी हजूरी करेंगे, पिटीशंस लिख रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, पर प्रेशर बनाने का प्रशासन पे दूसरा तरीका भी है, वो है छात्रों का भारी संख्या में आना। हाँ, और 16 तारीख को हम लोग एक और प्रोटेस्ट का कॉल दिए और पूरा उम्मीद है कि बहुत सारे छात्र असाइनमेंट्स और एग्ज़ाम के प्रेशर के बीच में आएंगे, हाँ, प्रोटेस्ट में, और काफ़ी ज़्यादा संख्या में आएंगे। तो मुझे लगता है उसके बाद प्रशासन को तो झुकना ही पड़ेगा, हाँ, अगर इतना सा भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुनी ये कोर मेंबर्स की बात जो है वो, और अब इनका कहना ये है कि मेमोरेंडम देने के बाद इन्हें उम्मीद है कि प्रशासन इस पर विचार करेगा, और अगर विचार नहीं होता है तो फिर वो अगले प्रोटेस्ट के लिए तैयार हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।